This was also done. Now, the most important topic of this chapter is, from where the question has been asked, is your models of OB. 4 models of OB is over here: autocratic, custodial, supportive, collegial, right? So to understand that, you all are ready with your pen and paper? Yes, ma'am. See, only Yes, this ma'am. much, Yes, ma'am. 2 to 3 line is given over here, but you need to write more than that, because generally 4 marks question has been asked from this topic. Okay, and beside understanding the concept, आपको ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप लोग फ्यूचर लीडर हैं, होने वाले हैं, है ना? तो आप ये थोड़ा मॉडल समझेंगे, जानेंगे, तो आप बेसिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में. एंड आई वांट यू टू इंप्लीमेंट दिस टाइप ऑफ मॉडल. व्हिच वन इज बेस्ट, यू हैव टू डिसाइड. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू राइट फर्स्ट मॉडल ओवर हियर इज, सबसे पहले मैं बता दूं, ये 4 यहाँ पे दिख रहा है, हम लोगों को 5 जानना है. Autocratic is there, custodial is there, supportive is there, collegial is there. अब recently add हुआ है आपका system model. All right, the recently added one is system model. Let's understand one by one. First is autocratic. तो इसका नाम ही suggest कर रहा है. What is autocratic? नाम ही suggest कर रहा है कैसा system होगा, कैसा model होगा. What is autocratic? मैम यहाँ पे मैम जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो मतलब बॉस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ बॉस ही ऑर्डर देंगे. यस ठीक मैम. है, बाकी को फॉलो करना ही करना है. आप कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते. अंडरस्टूड? नो ऑब्जेक्शन यू कैन मेक ओवर देयर. सिर्फ आपको हाँ ही करना है. दैट इज ऑटोक्रेटिक मॉडल. तो पहले ऐसा ही मॉडल फॉलो किया जाता था कि लीडर बोलते थे, एम्प्लॉइज फॉलो करते थे. तो चाहे उनकी मर्जी हो, चाहे वो करना चाहे, नहीं करना चाहे, अगर कोई ऑब्जेक्शन हो भी तो भी उनको रेज करने का परमिशन नहीं था. That was autocratic model. You need to write in bullet point. Okay, the point which I will be dictating, you have to write in bullet point. First bullet point you will start with when it was started. It was started in the period of industrial revolution. First bullet point will be in autocratic model. It was started in the period of industrial revolution. Okay. It was started Yes, ma'am. period of industrial revolution. Second bullet point will be, it gives the owner and manager, it gives the owner and manager the power to dictate and form decisions while making employee obey their order. Okay, line is clear to you all? In this model, what we do, owner and the manager are given power to dictate. ठीक है, डिक्टेटरशिप का पावर दिया जाता था, मतलब आप राज करिए, और जो एम्प्लॉय है उनको फॉलो करना होता था, ओबे करना होता था. दिस इज द पॉइंट इट इज टॉकिंग अबाउट. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजर विल डू all the thinking work. Obey their in second obey their point. order. Obey their order. Their मतलब बॉस का ऑर्डर. Okay, clear? Next point will be, manager will Yes, ma'am. do all the thinking work. Manager will do all the thinking work and employee will execute. And employee will execute. All the thinking. Yes. All the Repeat, thinking ma'am. के बाद मैम. Let me repeat. Your voice is not coming clearly. I told manager will do all the thinking work and employee will execute. Okay. यहाँ पे इवन एम्प्लॉइज को कुछ आइडिया भी प्रेजेंट करने का नहीं था, मौका नहीं दिया जाता था, परमिशन नहीं था. ऑल द थिंकिंग वर्क विल बी डन बाय बॉस एंड एग्जीक्यूशन वाला जिम्मा एम्प्लॉइज का. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, कमांड कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है,
कमांड कम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द फॉर्म ऑफ, अब देखिए कमांड एक होता है, एक लिबरल लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे कमांड जो मतलब दिया जाता था, यू डू और एल्स जो आगे होता है, ठीक है, यू नीड टू राइट दिस इन इन्वर्टेड कॉमा, डू दिस और एल्स, कमांड विल कम ऑफ डू दिस और एल्स. Abhinav, got my point? Ma'am, command from top to bottom in the form In of. the form of you do this or else in inverted comma. You do this or else in inverted comma. ठीक है, जब मन चाहा एम्प्लॉयर फायर हायर दोनों करने का You पावर. do this or. Yes. You do this or else. बस डॉट डॉट डॉट. You do this or else मतलब कहने का Ma'am, मतलब you do this. क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, you मैम do चारों this तरफ or बारिश else हो रही है, dot dot जिसकी वजह dot. से मैम नेटवर्क में Now am I clear? My voice is breaking or what? Yes, ma'am. No, ma'am. Breaking. Yes, ma'am. Breaking, ma'am. 1 second. Wi-Fi भी work नहीं कर रहा है. Only option left is my mobile network. Let me try. Let me switch my network first. Wait. Now let me know, is it clear or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear na? Ma'am, clear. Yes, Okay. ma'am. So what I was telling, that point is clear to you all. You do or else. You do this or else. Now proceed to next point. Power lies in the hand of employer. Power lies in the hand of employer to hire and fire. Power lies in the hand of employer of hire and fire. Hire and fire मतलब जब मतलब मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, आपका आवाज नहीं आ रहा है. I said in power lies in the hand of employer to hire, H-I-R-E, hire, and fire, F-I-R-E, fire. ठीक है, जैसे अभी क्या प्रोविजन है, इतनी इजीली आप किसी को फायर नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम पे क्या था, कंप्लीट ऑटोक्रेटिक था, मतलब सारा पावर एम्प्लॉयर के हाथ में था. अगर आप नहीं किए तो तुरंत आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाता था. ठीक है, तो पावर लाइज विद That employer, is not clear. hire also into fire also. Yeah, is there any problem? Your voice is breaking, ma'am. Again it is breaking. Ma'am, Yes, your ma'am. voice is Ma'am, breaking. you are Yes, not ma'am. clearly audible. Ma'am, leave करके करिए. पता नहीं यहाँ नेटवर्क सही है, सबको आवाज में प्रॉब्लम Aeroplane आ mode रही में है. डालिए, ma'am. एरोप्लेन मोड में क्या डालूं? अभी आपका आवाज क्लियर है मैम, जैसे आपने बोला कौन- एरोप्लेन अभी मोड मैम में क्या clear है डालिए, मैम. क्लियर. अभी क्लियर है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए. लास्ट पॉइंट क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. मैं अपना कैमरा ऑफ करके फिर करते हैं तो. वेट, Background लगा. नाउ लेट मी नो. Yes, ma'am. Clear. क्लियर है? तो मैंने अभी बस यही कहा है कि जो पावर था एम्प्लॉयर के हाथ में था हायर एंड फायर करने का. इतना छोटा सा पॉइंट क्लियर है क्या? Yes, Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. आगे Yes, ma'am. बढ़िए. Yes, आगे ma'am. बढ़िए. ठीक है, अब आगे बढ़िए. एम्प्लॉय रिसीव लेस वेज. Employee receive less wage. Employee receive less wages as they are less skilled. As they are less skilled. And their performance is also minimum. And their performance is also minimum. ठीक है, तो आप एम्प्लॉइज की केयर नहीं कर रहे,
ठीक है, उसके इमोशंस का कोई परवाह नहीं है आपको, ठीक है, उसके आइडियाज का परवाह नहीं है आपको, तो ऑब्वियसली वो अपनी मर्जी से काम करेगा नहीं, ठीक है, नतीजा उसका परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ओके, आगे लिखिए, विच दे डू इट, विच इसी में नेक्स्ट कंटिन्यू, पॉइंट मैम, नेक्स्ट पॉइंट नहीं, इसी में कंटिन्यूस है, विच दे डू इट rather reluctantly, 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 as they have to satisfy, not audible, ma'am. I said which they do it rather reluctantly, नेटवर्क इशू है शायद मैम का। what should be बारिश हो रहा है। done? अब तो नेटवर्क भी चेंज हो गया, मैं क्या करूं, यहाँ पे जबकि फुल नेटवर्क दिख रहा है, वाई वाईफाई है मैम। वाईफाई। अभी बताइए, मेरे ख्याल पक्का से जियो का stable होगा। होगा। हाँ, जियो तो खैर यहाँ है ही नहीं। एयरटेल का। हम्म? हाँ, इधर तो एयरटेल ही। मैम फिर से बोलिए पॉइंट। मैम स्पेलिंग बताइए। Which they do it rather reluctantly. Spelling will be RELUCTANTLY. ठीक है, मतलब अनविलिंगली आप कोई काम कर रहे हैं। अगर रिलेक्टेंटली, वैसे आपका बहुत ही सिंपल वर्ड है, वो क्या ये होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो इजी है, लेकिन जिसको टफ लग रहा है आप अनविलिंगली लिख सकते हैं, ठीक है, इन ब्रैकेट। ओके कोमल, क्या बात है, आप बहुत मुस्कुरा रही हैं। नो मैम। तो रिलेक्टेंटली अगर टफ लग रहा है तो आप अनविलिंगली लिख सकते हैं। ओके, ओके मैम। as they have to satisfy the need of their, as they have to satisfy the needs of their families and themselves, नीड्स ऑफ their families and themselves, ठीक है, यस क्लियर नाउ। अब लास्ट Yes. बुलेट पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें, बट देयर आर सम एक्सेप्शन। जैसे अभी तक हमने बात किया कि ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि लोग अपने विलिंगली काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या एक्सेप्शन होगा वो लिखिए, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, एज मेनी एम्प्लॉय do give higher performance, either they would like to achieve, either they would like to achieve and have a close association with their boss. मैम अचीव की बात क्या बोली? And have a close association with their boss. Okay, बहुत लोग क्या करते हैं कि कोई टारगेट बॉस दिए, चलो बॉस है इसीलिए फॉलो करना है ताकि क्लोज एसोसिएशन और फेवरेटिज्म वाली बात हो पाए, ठीक है, वो बॉस की नजर में रह पाए। तो दिस इज द एक्सेप्शन। डन, यहां तक हो गया। Yes, ma'am. यस मैम। Or either they have Yes, ma'am. been, or either they have been promised a good reward. They have been एक गुड Promised a good reward. Promised a good reward. But overall their performance is minimum. इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे पूरे साल कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम के टाइम पढ़ करके अच्छा मार्क्स ले आते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो सेम वे यहाँ एम्प्लॉइज के साथ भी बोला जा रहा है कि पूरे साल वो कोई काम नहीं करेगा, जब प्रमोशन का टाइम आएगा या कोई सर्टेन टारगेट दिया जाएगा या हाँ ठीक है आपको हाइक मिलने वाला है, उस वक्त बस या उस महीने बस वो काम करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन। आई थिंक ईच एंड एवरी लाइन इज क्लियर टू यू ऑल। एक बार पढ़ लीजिए, लास्ट लाइन लिख लिए थे सब लोग, यस ma'am, मैम। overall लाइन पढ़ performance. लीजिए, कहीं कोई परफॉर्मेंस इज मिनिमम बट ओवरऑल देयर परफॉर्मेंस इज मिनिमम।
पूरे साल कुछ नहीं किए हैं, लेकिन वो उस महीने जिस महीने हाइक मिलने वाला था उस महीने हम काम करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. तो एक एक लाइन पढ़ लीजिए, देखिए कहीं समझने में कोई दिक्कत। ऑटोक्रेटिक, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप रखेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और आगे भी आने की चांसेस है। मैम लास्ट लाइन है क्या बोले? गुड रिवार्ड बट ओवरऑल बट ओवरऑल देयर Performance is minimum. परफॉर्मेंस इज मिनिमम। ऑटोक्रेटिक अगर समझ गए हैं तब हम लोग बढ़ेंगे अपने कस्टोडियल मॉडल, नेक्स्ट मॉडल की तरफ। लेट And मी a नो, point power lies well. कौन सा? Power lies in the hand of employer. इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉयर टू हायर एंड फायर। ये समझना है, यानी एम्प्लॉयर के हाथ में है कि आप हायर मतलब क्या करना, किसी को रिक्रूट करने का, और फायर मतलब क्या, किसी को बाहर का रास्ता दिखाने का। ठीक है, तो अब कभी भी आप किसी को फायर कर देंगे, तुरंत अचानक किसी को जॉब मिलेगा, तो एक तरीके से तो एम्प्लॉय दहशत में रहते थे ना। गेटिंग माय वॉइस? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. And higher fire में confusion है. क्या बोले? हायर फायर? ये आवाज सुना के खुश कर दिया आप तो, जिधर से भी आवाज आई। हाँ, क्या पूछ रहे थे? हायर फायर वाला एक्सप्लेनेशन पार्ट समझ Higher और fire में सुन confusion. लिए थे या फिर उससे पहले ही कट गया था? हाँ, उससे पहले ही कट गया था ना। मैंने बस बता ये दीजिए एक explain बार। किया था। हायर फायर फिर से कट रिपीट, गई थी वॉइस. ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैंने बताया था कि एम्प्लॉयर जब मन चाहा हायर और जब मन चाहा फायर कर देते थे। हायर एंड फायर कहने का मतलब ये है कि जब मन चाहा मैंने रिक्रूट किया, ठीक है, अब रिक्रूटमेंट हो गया तो आप दूसरा जॉब तो ढूंढते नहीं है। अब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तुरंत किसी भी टाइम आपको फायर कर दिया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। Ma'am, your voice is breaking. अरे बाप रे, why this is happening? Because I don't think any class was facing such problem. मैम आई बाहर थिंक वर्षा हो वेदर रही चेंजिंग है। के कारण कभी कभी हो जाता है. Please क्योंकि change कर लीजिए. Okay, अब आगे बढ़ो। हायर फायर मैंने हाँ, फायर करने के लिए नोटिस मतलब डायरेक्ट किया जाता है. मैंने कुछ पहले से नहीं, notice दिया जाता है. ऑटोक्रेटिक है, नहीं कुछ कोई नोटिस Doubt नहीं, होती है। डायरेक्ट बाहर। ठीक है, Suddenly. पहले ऑटोक्रेटिक, हाँ ऑटोक्रेटिक मॉडल में यही होता था, कोई नोटिस नहीं, नथिंग, जस्ट आपका वही बॉस है, जो डिसाइड करेंगे वही डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले ऐसा ही चलता था ऑटोक्रेटिक इसको मॉडल। हम लोग डिक्टेटरशिप बोल सकते हैं मैम। हाँ बिल्कुल, मैंने तो लिखवाया है ना, बॉस वाज द डिक्टेटर, अच्छा Yes, they ma'am. have power to लिखवा- अच्छा dictate। लिखवाई। हाँ, It second gives the point, owner manager. हाँ, यस मैम yeah, I think it is sufficient explanation is given to autocratic model. Yes or no? Everyone understood? यस मैम, काफी। अब आ जाइए Yes, कस्टोडियल मॉडल। अब देखिए धीरे धीरे जो है सिचुएशन इंप्रूव करेगा। कस्टोडियल मॉडल में हम लोग ऑटोक्रेटिक से स्विच होकर के आ रहे थे सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉय की तरफ, और सिक्योरिटी इन द सेंस सोशल एंड इकोनॉमिक, दोनों सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप लिखिए कस्टोडियल मॉडल में फर्स्ट लाइन विल बी इन ऑटोक्रेटिक सेटअप, फर्स्ट पॉइंट इन ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल नहीं लिखना है, इन ऑटोक्रेटिक, कस्टोडियल के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट होगा इन ऑटोक्रेटिक सेटअप, यानी हम यहाँ कंपैरेटिवली कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ भी अनम्यूट किया हुआ है थोड़ा माइक चेक कर लीजिए। मोनिका, आई थिंक मोनिका एंड प्रत्यय। Sorry, ma'am. Sorry. नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन ऑटोक्रेटिक सेटअप एम्प्लॉय डज नॉट टॉक बैक। इन ऑटोक्रेटिक सेटअप employee does not talk back. in autocratic In autocratic setup, employee does not talk back. ठीक है, yet they have many things. नो मैम, डज नॉट के बाद किसके बाद? Does not के बाद मैम. मैम रिपीट does मैम not talk, talk, talk. Does not imply. मैम Does स्टार्टिंग not- से बता not दीजिए मैम, talk स्टार्टिंग back. से बता दीजिए मैम। हाँ, Talk back. हाँ, talk back. Yet they have many things to say. Yet they have many things to say
but incapable to speak. Be little bit faster, क्योंकि जैसे देखिए शॉर्टकट थोड़ा आप अप्लाई कर सकते हैं. एम्प्लॉय की जगह पे आप ई और ऊपर में ई दे सकते हैं. एम्प्लॉयर की जगह पे आप ई ऊपर में आर दे सकते हैं. ठीक है, अप्लाई दिस शॉर्ट फॉर्म और आगे जल्दी जल्दी फटाफट बढ़िए. ठीक है, क्या लिखा है, रिपीट करिए. बट कैपेबल के बाद But incapable to speak. Yet they have many things They to have say, many but incapable to. many things to say. But incapable to speak, result in frustration. Result in frustration, comma, insecurity, insecurity, and aggressive behavior towards their boss. Towards their boss. Okay? क्या लिखा हमने कि ऑटोक्रेटिक सेटअप में क्या होता था कि एम्प्लॉइज वापस कुछ बोल नहीं सकते थे. अब कुछ बोलने नहीं के वजह से क्या हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता था एम्प्लॉइज के अंदर. इनसिक्योरिटी, चूंकि कभी भी फायर किया जा सकता था, इनसिक्योरिटी था. ठीक है, एक तरीके से एक एग्रेसिव बिहेवियर था बॉस के प्रति, मतलब बॉस को लाइक नहीं किया जाता था. ठीक है, और अब इसका इंप्रूव्ड वर्जन जो कस्टोडियल है, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, इन दिस मॉडल मींस इन कस्टोडियल मॉडल, manager began to think about the security of the ब्रेक हो रहा है मैम आपका. मैम इन दिस मैम, मॉडल आवाज ब्रेक हो रहा है मैम. रिपीट कर रही हूँ. मॉडल के बाद मैम कहा in this model manager began to think about security of the employee. यहाँ पे हम एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की बात करने लगे. मैनेजर एम्प्लॉय की सिक्योरिटी की बात सोचने लगा. ठीक है, if voice is not audible and explanation part is audible, you can write in your own language also. ठीक है, हम लोग कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि सिक्योरिटी की बात हो रही है. अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, अपने लाइन में लिख लीजिए. ठीक है, साक्षी, yes or no? Sakshi, getting my voice? Roll number 59. Yes, ma'am. और सिक्योरिटी में भी ब्रैकेट में लिख लीजिए सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक. सोशल एज वेल एज आवाज नहीं आया. आवाज नहीं आ रहा. सोशल के बाद आवाज ब्रेक हो रहा है मैम. सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक. मैम रिपीट कर दीजिए मैम. मैंने कहा इन दिस मॉडल मैनेजर बिगन टू, मैम रिपीट एक कर काम दीजिए करिए. मैम. इन दिस मॉडल आवाज- मैनेजर बिगिन. इन दिस मॉडल मैनेजर बिगन टू थिंक मैम अबाउट. यहाँ पे और भी ज्यादा आवाज. यहाँ बारिश नहीं हो रही है और मेरे वॉइस ख्याल क्लियर से नहीं आ रही है मैम. मैं यहाँ बारिश नहीं हो रही है और ना ही यहाँ नहीं। पे नेटवर्क का कोई भी इशू लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ नेटवर्क पूरा दिखा रहा है. क्या सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या? सब हर जगह वॉइस ब्रेक हो रहा है? Yes, यस मैम, बहुत ज्यादा हो रहा है मैम. कुछ और चीज चला के देख लीजिए ना, कहीं मे भी जूम का इशू आपका. अब बता नहीं रहे. ब्रैकेट Ma'am, में in क्या this बोला? model, ब्रैकेट में मैं सिक्योरिटी, जैसे मैं बता रही हूँ ना कि एम्प्लॉय सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगे थे, मतलब एम्प्लॉयर सिक्योरिटी के बारे में सोचने लगे थे एम्प्लॉइज के. तो किस टाइप का सिक्योरिटी? तो बहुत सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक. वो मैंने कहा था ब्रैकेट में लिखने के लिए, सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक. ओके, इकोनॉमिक मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम. इन दिस मॉडल मैनेजर बिगिन to think about security of the employee. Security of the employee. Is it done? हाँ, यस यस मैम. अब आगे बढ़िए. Not yes. Now what? यस मैम. आगे बढ़िए. Now managers began to think, या began to study about their employees' need. Began to study about the employees' need. Study क्यों लिखवाया जा रहा है? स्टडी क्यों बताया जा रहा है यहाँ पे? क्योंकि किसी के नीड को हम लोग
आपको स्टडी ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से जान सकते हैं कि क्या जरूरत है उसकी, ताकि वो जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन की उसके प्रति वो इंटरेस्ट दिखा सके। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ Yes. मैनेजर्स बिगिन टू थिंक अबाउट देयर एम्प्लॉय नीड्स। डन? Yes. Yes, आगे ma'am. बढ़िए। Yes, ma'am. employer started to develop better relations with the employee, better relations with the employee, and to keep them satisfied and motivated. Then Yes, ma'am. Yes, ma'am. it is reward based model. Done. Next point. A successful Yes, ma'am. custodial approach. Ma'am. Now what? A successful custodial approach depends on providing economic security which many companies are now offering. Which many companies are now offering. अब क्या क्या ऑफर हो सकता है, जैसे हाई पे स्केल, रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन भी किस किस फॉर्म में, हेल्थ बेनिफिट दे करके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत एम्प्लॉयज को दिया जाता है, मतलब घर से पिकअप फैसिलिटी दिया जाता है ना। तो ये सब आप लिख सकते हैं। आगे लिखिए ऑफरिंग एज हाई पे स्केल, आगे लिखना है प्रत्यय, ऑफरिंग एज हाई पे स्केल। लड़कियां गेम डाउनलोड करेगी, आप लोग बार वो करेंगे, हमको याद दिख रहा की बात हो रही थी, थोड़ा लास्ट टाइम रिपीट करिए। मैम ये बताइए मैम, Many सिक्योरिटी विच मेनी कंपनी आर नाउ ऑफ, now for क्या था? आर नाउ ऑफरिंग Now offering. इसके बाद से बताइए मैम। as high pay scale, comma remuneration एज हाई पे स्केल, ठीक है। हाई पे स्केल कहने का मतलब है, अगर कोई Yes, मान ma'am. लीजिए सेल्स के लिए कोई अगर 20,000 ऑफर कर रहा है, तो कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका कल्चर अच्छा होगा या फिर ये मॉडल अगर अप्लाई कर रहे होंगे तो थोड़ा अधिक देंगे, अगर 20,000 है 25 देंगे, दैट इज हाई पे स्केल। ओके, नेक्स्ट वन इज रेम्यूनरेशन, और रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ बेनिफिट, रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ बेनिफिट। मैम नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कंटिन्यूएशन है ये, हाई पे स्केल Spelling comma. ma'am. किसका, रेम्यूनरेशन का, REMUNERATION, Yes ma'am. रेम्यूनरेशन। These are management words और जनरली हम लोग यही यूज करते हैं सैलरी के जगह पे रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो ये सब थोड़ा वर्ड वगैरह का ध्यान रखिए। रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ बेनिफिट, comma corporate cars, financial package, remuneration in the form of health benefit। थैंक गॉड कि भगवान हमको इतना पेशेंस दिया। फाइनेंशियल Yes, पैकेज, सही बात। हेल्थ Silpi. बेनिफिट, कॉमा Silpi ma'am कॉर्पोरेट तुरंत डाल। कार्स, हाँ Silpi ma'am Corporate डाल car. देती ना।
रिपीट कर रही हूँ, होल्ड डाउन। हेल्थ बेनिफिट कॉमा कॉर्पोरेट कास्ट कॉमा फाइनेंशियल पैकेजिंग, डन, एंड मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स। ठीक है, मेनी अदर फॉर्म ऑफ इंसेंटिव कहने का यहाँ क्या मतलब है? इंसेंटिव इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। आपका जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे जो आपको पेमेंट होता है अदर देन योर सैलरी, ठीक है, उसको हम लोग इंसेंटिव कहते हैं। बोनस बोनस अलग हुआ, बोनस Yes, जो ma'am. होता है ना वो आपके प्रॉफिट पे जो आपको दिया जाता है, कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाई है उस पे जो आपको कुछ परसेंट दिया जाता है, दैट इज बोनस। इंसेंटिव इज समथिंग डिफरेंट। इंसेंटिव जैसे मान लीजिए आपको टारगेट दिया गया 1 लाख अचीव करने का, मान लीजिए 1 लाख का इंश्योरेंस ला के दीजिए, 1 लाख का म्यूचुअल फंड ला के दीजिए, ठीक है, आप वो 1 लाख ला के बल्कि 2 लाख ला के दिए, तो वो एक्स्ट्रा आपका हुआ ना अचीवमेंट। सैलरी आपको 20,000 यस मैम, जैसा कि मैम 25,000 शॉपकीपर प्रॉमिस को किया दिया गया जाता है। है। हाँ, जैसे 25,000 आपको प्रॉमिस किया है तो वो तो दिया ही जाएगा, प्लस वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस पे मान लीजिए 10% एक्स्ट्रा दे या 20% एक्स्ट्रा दे, तो वो जो 20% है ना दैट इज इंसेंटिव। ठीक है, तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए मतलब कि एक्स्ट्रा मैम बेनिफिट आपको दिया जाता था। ठीक है, आपके तो परफॉर्मेंस मैम ये भी इंसेंटिव हुआ ना मैम, जैसे किसी जनरेटर के डीलर को ये बोला गया कि आप 10 लाख का जनरेटर आपके एक महीने में सेल कीजिए जनरेटर अप्रैल से मई क्लास में तक। कहाँ से आ जाता तो है भाई आपके? मतलब कोई किसी भी इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब का एग्जांपल दिए आपका। हैं, तो ये भी तो मैम इंसेंटिव। हाँ, आप सही समझे, आगे यस बढ़ा मैम। जाए। तो नेक्स्ट वन इज, ओके नाउ लेट्स प्रोसीड, सपोर्टिव तो मैम मॉडल। हाँ, बोल लीजिए प्रत्यय। नहीं बोलना तो आगे बढ़िए। सपोर्टिव मॉडल, सपोर्टिव मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट आवाज मॉडल नहीं आ में रहा हम था। लोग, आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? आ रही है अभी। यस अभी मैम। बताइए तब आगे Yes, बढ़ूंगी। ma'am. अभी ठीक है? ठीक है, ठीक है मैम। मैम आई थिंक हम लोग का आवाज बहुत स्लो जा रहा है आपके पास। अभी ठीक है कि नहीं अभी बताइए। यस मैम ठीक अभी है। सही है मैम। हाँ, तो सुनिए अब मैं क्या बताना चाह रही हूँ। पहले मॉडल में हमने देखा कि वो बॉसी नेचर था, ठीक है, ऑटोक्रेटिक मॉडल में। सेकंड में हमने बताया कि जो एम्प्लॉयर हैं वो थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में सोचना शुरू किए, एम्प्लॉयज की नीड के बारे में सोचना शुरू किए। और अब ये जो सपोर्टिव मॉडल है इसमें हम मोटिवेशन की बात करना शुरू किए, एम्प्लॉय के मोटिवेशन। यहाँ पे सिक्योरिटी और ऑटोक्रेटिक वो सब तो नहीं है, उसके लिए स्पेस नहीं है कि कोई आपके ऊपर एज एन एम्प्लॉय कोई आपके ऊपर कंट्रोल करे। यहाँ पे मेन फोकस है कि स्टाफ मोटिवेटेड रहे। इस मॉडल में मानना था कि एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेगा, मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा होगा तो वो खुद से काम करेगा, एक्स्ट्रा उसको प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट इन सपोर्टिव मॉडल। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस मैम। यस मैम। तो लिखिए मींस मैम एम्प्लॉय खुद मोटिवेट रहेंगे, उनको मोटिवेट करने का जरूरत मोटिवेशनल इन नहीं है। नेचर। यस हाँ लिखिए, अनलाइक द टू प्रीवियस अप्रोचेस, unlike the two previous approaches, the supportive model emphasize on motivated and aspiring leader. Ma'am, your voice is breaking. मैम सपोर्टिव के बाद एक काम करते हैं,